Hello students, welcome to Love with Mathematics. This is class 6 physics video of chapter number 4, that is force. I think you all are familiar with this word, that what is force. Force, we use this thing in our daily life. For most of things we use force. Force क्या है बेटा? Just like if we are pushing something, किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो, pushing something, then it's a force. If you are pulling something, it's a force. Like you are lifting something, कुछ उठा रहे हो, that is also force. Right बेटा? So let's start with our video. He said like something around us, for example a desk or parked car or stationery. Right? If something is in rest, then we will call it stationary. Stationary means कोई चीज़ खड़ी हुई है, rest में पड़ी हुई है, that we will call it stationary. Right? And these are said to be state of rest. Then we will say that that thing is in which state? It is in rest. If something is moving, then we will say that thing is in motion. State of the thing is motion. It's moving. Like right beta? So the thing is that to change the state of a body, one state is state of rest and one is state of motion. To change the state of body, we can't change it as it is. We have to apply some force. If we apply some force, only then the thing change its state. How it is? Like if you are pushing something, हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं बेटा, तो वो क्या करेगी? वो आगे चल पड़ेगी, मूव करेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली. It has changed its states. Then we will say that the thing now it comes to the motion, so it is now in motion, so its state has changed. How it is changed? By applying the force. And same, if you are moving a bicycle and your friend applying force opposite to it. If you are moving a cycle, suppose it's a cycle, and your friend is pushing it from opposite side. You are moving toward this side and your friend is pushing it toward this side. Right? Slowly it will slowly it will come to the rest. If he has catched it properly. Right beta? It will come to rest. Or if you are moving toward this side and your friend has caught your bicycle from this side. If he has hold it properly, then it will come to the rest. Right beta? So in this way we can change the state of body by applying force. So the definition of force, what it will be? Pushing or pulling something. राइट किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. ठीक है, एक तरह से ये हमारी एक जर्नल सी बोलने को जो है डेफिनेशन बन जाएगी कि फोर्स को हम किस चीज़ के साथ डिस्क्राइब कर लेंगे. टू पुश और पुल समथिंग. राइट. एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है. तो फोर्स के इफेक्ट्स बेटा काफ़ी हैं. सबसे पहला इफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या करती है, स्टेट चेंज कर देती है. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. फोर्स कैन कॉज मोशन. फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मोशन हो सकता है. कैसे मोशन हो सकता है? अब कोई बॉडी रेस्ट में है, वो स्टार्ट अगर मूव करना शुरू कर देगी बाय अप्लाइंग फोर्स, तो हम बोल देंगे कि उसका जो है स्टेट चेंज हो गई, मोशन में आ गई. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉल है, राइट, कोई बॉल खड़ी हुई है, ऐसे रखी हुई है, आपने क्या किया, उसे किक कर दिया. किक करोगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दैट साइड. सो इसके साथ क्या हो गया कि उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई. राइट बेटा? सो इस तरह से आप उसकी फोर्स जो क्या है उसने कॉज कर दिया मोशन. सेकेंड जो है दैट इज फोर्स कैन इंक्रीज स्पीड. फोर्स क्या कर देगी, स्पीड इंक्रीज कर देगी. वो कैसे इंक्रीज कर सकती है भाई, कुछ तो होता होगा ना, कैसे इंक्रीज करेगी.
बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आप सबको पता है, ये एग्जाम्पल आप सब ने पढ़ी हुई क्या आप लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है. हाउ इट इज़, if you are like you are on a swing, right? Your friend is pushing from the back side or from the front side. Mostly be set your friends to push it from the back side, right? If you want to increase its speed, if he is pushing to from the back side, so what will happen? Its speed will increase, right? If you are on swing and your friend is pushing toward this side, and it will start moving toward this side with the greater speed. How much force it is applying, its speed will depend on it. If it is applying more force, then it will move with more speed, right? So it can increase the speed. And same, if force can increase the speed, so it means it can also decrease the speed. It can also the effect of force, na? So next is force can decrease the speed. How? Same, if you are on a swing and your friend is coming either from back side or from front side, if it is hold it properly, then you are unable to move forward. So what will happen? Your speed will slowly going to increase and decrease. At a point you will stop moving, right beta? And next, if for example, if ball is moving and you catch it, right? If you catch it, or if the ball is going toward this side and if you kick from this side with slow force, less force, so slowly its speed will decrease and its direction will change. So next is beta, force can change the direction of motion. How it can change the direction? Same example of ball. In cricket you can see it in this example easily. When the bowler puts a ball, you hit with the bat, right? If the bowler put a ball toward your side, its direction is this, it is moving toward this side, and suddenly what happened? You just push it with your bat, you hit it and the ball moved toward the other side. What happened? Actually bowler gives the force to ball, बॉलर ने क्या किया? फोर्स दिया बॉल को, एंड आपने क्या किया? बैट के साथ हिट किया. When you are hitting it, what happened actually? It just changed the direction, right beta? And next effect is, ये भी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, force can change shape और साइज. फोर्स के साथ क्या है? शेप और साइज चेंज हो जाते हैं. हाउ इज इट? फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आजकल तो आप लोग बेड पे रहते होंगे ना, रूम में रहते हैं, ठीक है. नॉर्मली क्या है बेटा? पिक अ सॉफ्ट पिल्लो पकड़ते हैं ना हम, पिल्लो पकड़ो, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करो, दबाओ, प्रेस इट, यू विल सी द शेप ऑफ द पिल्लो गेट चेंज्ड. सो व्हाट इट इज़? इट्स अ इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स लगाया, उसको दबाया दोनों तरफ से, शेप चेंज हो गई, ठीक है. और दूसरी एग्जांपल, क्ले. बच्चे आजकल क्ले के साथ बड़ा खेलते हैं, छोटे बच्चे. क्ले के साथ कुछ नई नई चीज़ें बनाना, वो कैसे बन जाती हैं? क्ले के ऊपर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है. उसका साइज़ भी आपको जैसा लगता है आप वैसा साइज़ बना सकते हो उसका, ठीक है बेटा. सो इन दिस वे बेटा वी कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द थिंग्स बाय अप्लाइंग फोर्स. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. सो हेयर see this, force is something that can bring about the change in the state of rest or motion of a body or change in the shape or size of the body. So we are defining the force like this, just a push or pull. तो है ही,
बट क्या है, पुश और पुल के साथ क्या किया, चेंज की उसने स्टेट ऑफ बॉडी. इफ इट इज इन रेस्ट वी चेंज इट टू द मोशन, इफ इट इज़ इन मोशन वी चेंज इट टू द रेस्ट. और ऐसे ही शेप और साइज़ भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. नेक्स्ट क्या है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे आगे काम आएगी. नॉर्मली आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द लाइक यूनिट्स ऑफ फोर्स. यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र करते हैं. मेज़र कर सकते हैं हम इसको कैसे, कि हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है. कि अगर आपने किसी टेबल को धक्का लगाया, अगर मैं अब इस बुक को जो है फोर्स लगा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को मेज़र कर सकती हूँ कि मैंने कितनी फोर्स लगाई है. तो फोर्स इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी. किस चीज़ में मेज़र होती है, जैसे वेट तो है ना, किलोग्राम में मेज़र होता है, राइट. कोई लाइक डिस्टेंस एट दैट वी कैन मेज़र इन मीटर्स, किलोमीटर्स, इफ़ इट इज़ वेरी स्मॉल सेंटीमीटर, मिलीमीटर, राइट बेटा. तो ऐसे ही फोर्स जो है उसके एसआई यूनिट, एसआई मीन्स जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या है, फोर्स के यूनिट है, यूनिट्स ऑफ फोर्स दैट आर न्यूटन. यूनिट्स ऑफ फोर्स आर न्यूटन. तो इसका जो सिंबल है, जैसे किलोग्राम का सिंबल है केजी, ग्राम का सिंबल है जी, मीटर का सिंबल है एम, ऐसे ही इसका सिंबल है एन. अभी आप बोलोगे कि न्यूटन कितना हुआ फिर, ठीक है. न्यूटन, 1 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली अ फोर्स, सी हियर, 1 न्यूटन इज अप्रॉक्सीमेटली द फोर्स यू वुड अप्लाई टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, उठाना, ठीक है, ऑफ मास 100 ग्राम. किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है अगर 100 ग्राम है, उसको उठाने के लिए जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है उसको 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं. अगर हमने 1 kg चीज़ को लिफ्ट करना है तो उसके लिए जो फोर्स होगी, अप्लाई होगी, दैट विल बी 10 न्यूटन. राइट बेटा. चलो हल्की सी रिकैपिटुलेशन करते हैं फटाफट से और वीडियो को ख़त्म करते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोर्स के बारे में. तो फोर्स के अंदर हमने क्या बताया कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं. तो पुशिंग और पुलिंग को क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं. तो इसके अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स कैन कॉज मोशन. फोर्स के साथ क्या होता है, मोशन हो सकता है. अगर कोई चीज़ रेस्ट में है वो मोशन में आ सकती है, अगर कोई मोशन में है तो वो रेस्ट में हो सकती है. फोर्स के साथ क्या होता है, स्पीड चेंज हो सकती है. स्पीड बढ़ा भी सकते हो, स्पीड कम भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फोर्स. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स के साथ कोई बॉल है आपकी तरफ आ रही है, उसको आपने उधर से हिट कर दिया, वो दूसरी साइड चली जाएगी, डायरेक्शन चेंज. फोर्स कैन चेंज शेप और साइज़. इसके साथ क्या है, शेप और साइज़ चेंज हो सकते हैं. हमने पिल्लो की एग्जांपल ली, क्ले की एग्जांपल ले ली, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिट्स ऑफ फोर्स, ये याद रहना चाहिए, कीप इट इन योर माइंड. यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, एन के साथ लिखते हैं, ठीक है. 1 न्यूटन फोर्स जो है वो 100 ग्राम की चीज़ को लिफ्ट कर सकता है. अगर इतनी फोर्स लगा रहे तो 100 ग्राम की चीज़ लिफ्ट हो जाएगी, उठाई जाएगी. अगर आपने 1 kg चीज़ लिफ्ट करनी है तो यू नीड टू अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स ऑन इट. राइट बेटा. सो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. राइट. ओके बेटा, थैंक यू.